So we shall continue with our ECG. In the last class, we have discussed everything in basic, what ECG is all about, what are the nomenclatures for the leads, what are the different leads which we use, and then we have also talked about the different orientations of the lead and 12 lead ECG, why we would look at the 12 leads ECG, what is the information which is available on the ECG. So today we are going to discuss how to diagnose the myocardial infarction or heart attack by using a 12 lead ECG. So I have told you in the last class, we have discussed in the last class that we required all the 12 leads or all the 12 views to diagnose that the person is undergoing a myocardial infarction, because if we look at a one lead, we might miss the myocardial infarction which is not taking place in that portion of the heart which is monitored by that particular lead. So that's why, that is the reason why we look all the 12 tracings of ECG while we are diagnosing the myocardial infarction. And I repeat, for looking any other arrhythmias, we can look only one or two or three leads. That will that those leads will able to tell us the arrhythmias. But for looking at the myocardial infarction, we have to look for the 12 leads ECG. Okay. So we have also, that's why I've discussed that how to read a 12 lead ECG. Now you are aware of 12 lead ECG. Now we have to look what are the abnormality in the ECG graph which comes when the myocardial infarction or heart attack has happened. Okay, so we need to learn that. So one thing is that one change which occurs in the normal ECG graph while myocardial infarction happened or cardiac arrest happens is the ST elevation. So what is ST elevation? It is the elevation of this segment. You can see this segment where the S wave ends and the T wave starts. Between the S and T, you can see this ST segment, right? So one way to diagnose a myocardial infarction is to look at this ST segment. In normal graph, you have seen this ST segment is lying where? It is lying on the isoelectric line. You always see that it is always in the isoelectric line in continuation with the or at the level of a isoelectric line. It means during when the ventricles, they are undergo depolarization, and then when they start undergoing a repolarization, there is a no electrical activities going on here. So that is an ST segment here, which constitute an ST segment. So what is happening? And also here you can see, I have pointed out and written out a J point here. Here you can see a J point. So what is that J point? This is also very relevant while we are diagnosing a myocardial infarction. So J point, where it is lying, where the S is finished and where the T segment is starting. So this is an ST segment here. So J point is this. And you should also notice that J point is lying where? It is lying on this isoelectric line. This is an isoelectric line. So J point is also it is lying on an isoelectric line, and ST segment is a segment between S and T. So what we look during the myocardial infarction, it is this ST elevation. So ST elevation is a one way to diagnose an acute myocardial infarction. Okay, there are other ways as well. We also look for an ST depression and also the different shapes of these ST elevation and ST depression. And then there are cases where there is absolutely no ST elevation or depression, non STMIs कहते हैं उनको. Okay, वो cases भी होते हैं और उनमें कुछ और changes होते हैं. So what we are going, this is a simple case and easy and one of the way. So I am only discussing, restricting myself to the ST elevation segments. ठीक है? So आपको एक idea हो जाए कि अगर myocardial infections होते हैं तो हम ECG से उनको कैसे read करते हैं. This is just to give you an idea. So we are talking about only how ST elevation segment can tell you about the myocardial infarction. So
in order to assess the ST segment, we must first define the J point. J point कहाँ पर है? तो J point मैंने आपको बताया कि कहाँ पर है. The J point in the ECG is the point where the QRS complex joins the ST segment. Okay, so it is representing the approximate end of the depolarization and the beginning of the repolarization of the ventricle. So that is very important. The doctors and the technicians, they look where is the J point lying. It should be on the isoelectric line. अगर वो isoelectric line पर उनको नहीं दिखता है, then they understand that this change happens in the ECG when the heart undergoes an myocardial infarction. So that's why it is very important to also note that. ठीक है? And you can also see both the, as I have told you, ST elevation and ST depression in ECGs. But ST elevation is an indicative of myocardial infarction. So in other words, myocardial cell death is occurring, you know, कि अगर heart के muscles को अगर blood supply नहीं होगा, oxygen cut off हो जाएगी, तो फिर heart muscle cells क्या होंगे? They will undergo death. And you also know कि उनकी रीजेनरेशन नहीं होती है, दोबारा से रीजेनरेट नहीं होते हैं. एसटी डिप्रेशन क्या है? इज एन इंडिकेटिव ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया. द मायोकार्डियल सेल्स आर नॉट गेटिंग एनफ ऑक्सीजन एंड आर एज अ रिस्क ऑफ डाइंग. सो अगर कंप्लीट कट ऑफ हो जाता है ब्लड से, पार्शियल ब्लॉक है, इट डिपेंड्स ऑन द ब्लॉकेज. ब्लॉकेज ऑफ व्हाट? किस चीज के ब्लॉकेज पर डिपेंड करता है? हार्ट अटैक कैसे होता है? यस क्लास, मैं किस चीज के ब्लॉकेज की बात कर रही हूँ? हार्ट में कैसे होता है हार्ट अटैक? मैम आर्टरीज जब ब्लॉक हो जाती हैं ड्यू टू एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल और समथिंग लाइक दैट. कौन से आर्टरीज? यस, यस यू आर करेक्ट. कौन से आर्टरीज? यस स्टूडेंट्स, कौन से आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं? बताओ. Which arteries get blocked? Coronary arteries. Right. हार्ट जो है, हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है? इट हैज ओन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सबसे पहले हार्ट जब अपने आप को सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड और ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करेगा तो बॉडी को कैसे करेगा? ठीक है. सो ह्यूमन हार्ट इट हैज इट्स ओन सर्कुलेटरी सिस्टम. अपना खुद का उसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ओके. तो that circulatory system, it constitute of coronary, it is known as a coronary arteries. So there are three major coronary arteries होते हैं. हम एनाटॉमी में नहीं जा रहे हैं. तो किसी भी coronary arteries में कहाँ ब्लॉकेज की बात हो रही है? आर्टरी. कौन से आर्टरी में? coronary artery. coronary artery are what arteries? The arteries which are supplying the wall of the heart. Okay, so it depends कि पार्शियल ब्लॉकेज है, कंप्लीट ब्लॉकेज है. सो इफ देयर इज अ कंप्लीट ब्लॉकेज, अगर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उसको मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं. इस्कीमिया इज मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन. दैट इज द meaning of word ischemia. When the tissue or the cells they are deprived of oxygen, then it is ischemia. So that is myocardial ischemia. Myocardial infarction when the when the heart muscles they are not getting a sufficient blood supply, then it undergo myocardial infarction. When the when the heart muscles they are not getting a sufficient oxygen, it is called as myocardial ischemia. So myocardial cells are not getting enough oxygen and at a risk of dying. तो हम दोनों में कैसे डिफरेंस वो कर सकते हैं? by looking at the ECG we can differentiate by looking whether the ST segment is elevated or ST segment is depressed. Okay, so अलग अलग changes in ST segments elevation indicates a different pathological underlying pathological causes. So here you can see कि ischemia अगर है तो क्या होता है? myocardial ischemia causes the ST segment depression. आपको ये पता है अभी कि myocardial ischemia अगर हुआ है तो ST segment depressed हो जाएगा.
with it may be with or without T waves. I'm also not going into so much of details of it. बहुत है, अगर आप इसका डिटेलिंग पढ़ेंगे, that is for medical students, lot of details you can also read that. So I'm just telling you the basic thing. So myocardial infarction, ischemia है तो ST segment का depression होगा. Myocardial injury है तो इंजरी में क्या होता है, ST segment elevation with or without लॉस ऑफ आर वेव्स. तो इंजरी में वो उसके आर वेव्स के कॉन्टैक्ट्स में भी हम देखते हैं और टी वेव के कॉन्टैक्ट्स में भी हम देखते हैं, टी वेव को भी हम देखते हैं साथ में. बट इंपॉर्टेंट है एसटी सेगमेंट एलिवेशन. मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या करता है, इट कॉजेज डीप क्यू वेव as a result of absence of depolarization current from the dead tissues and receding current from the opposite side of the heart. क्या होता है जब मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है तो जो क्यू वेव है वो बहुत डीप चली जाती है, बड़ी हो जाती है, उसकी एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं बड़ा हो जाता है. अलोंग विद दैट व्हाट इज हैपनिंग, उसके अलावा क्या होता है, क्यू वेव में तो चेंज आता ही आता है, प्लस सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो एसटी सेगमेंट एलिवेशन में आता है. सो एलिवेशन इन रेफरेंस टू व्हाट, ऑलवेज वी लुक एट द एलिवेशन इन रेफरेंस टू दी दिस लाइन विच इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. उस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से अगर एलिवेट हो जाता है, ठीक है, तो हम कुछ कंडीशंस देखेंगे, क्लिनिकल केसेस देखेंगे एलिवेशन के, ठीक है, डिप्रेशन के नहीं देखेंगे, एसटी एलिवेशन के कुछ केसेस देखेंगे. सो सपोज नाउ फॉर एग्जांपल लुक एट दिस ग्राफ. सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ यू विल बी एबल टू सी कि ये जो है, ये ये जो एलिवेशन आपको नजर आ रहा है ये नॉर्मल एलिवेशन नहीं है. नॉर्मल एलिवेशन, नॉर्मल में क्या होना चाहिए, नॉर्मल में दिस इज द जे पॉइंट and this elevation which is here you can see actually this should be here, where at the isoelectric line. So where is the isoelectric line here, this is the isoelectric line जहां पर आपको ये रीडिंग्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो इन रीडिंग्स के कंपैरिजन में, सो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हम बेसिकली कैसे देखते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हम ये देखते हैं कि पीआर सेगमेंट जो है वो कहाँ पर है, उसके कंपैरिजन में हम वो लाइन देखते रहते हैं कि अच्छा ये लाइन है यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. ओके, सो हियर यू कैन सी हियर क्या, ये वाला जो एसटी सेगमेंट था वो एलिवेट होकर के यहाँ चला गया और इसको होना कहाँ चाहिए था, नॉर्मली इसके यहाँ पर होना चाहिए था. So that is an ST segment elevation. V3 में भी आप देखेंगे that it is here. So ये एक particular shape बना देता है ना, डूम शेप बना देता है. Here you can see. So if this is detected, it is an indicative of myocardial infarction. Here you also you can see because V4 में readings थोड़े छोटे छोटे होते हैं लेकिन still here you can see. Okay, this is an elevation. ये होना कहाँ चाहिए था, ये होना यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर चाहिए था. एंड ऑल्सो इन V5 वी कैन सी. ओके, सो दिस कम्स विद अ प्रैक्टिस. थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है कि हमें कैसे समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे मैम V5 में ना रीडिंग्स बहुत छोटे छोटे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश कि मैम एसटी सेगमेंट कहाँ चला गया उठ के, हमको कैसे पता चलेगा. सो दिस कम्स विद अ प्रैक्टिस, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू theoretical thing. Theoretical thing is that what they are looking at when we are looking at a myocardial infarction. तो जहां पर जिन लीड्स में अच्छा दिखाई देता है ग्राफ, वेव में डिस्टिंक्शन होता है, वहां तो आप देख सकते हो. जिन वेव्स में, जिन लीड्स में थोड़ा सा छोटे छोटा आता है ग्राफ का रीडिंग, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम लोग डे टू डे बेसिस पर तो ईसीजी देख नहीं रहे हैं. तो इट कम्स विद अ प्रैक्टिस. सो एलिवेशन अब कितना होना चाहिए, एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट्स विच इज ग्रेटर देन वन स्मॉल बॉक्स. जो छोटे छोटे बॉक्सेस हमने पढ़े थे उससे ज्यादा एलिवेशन हो, अगर उतना है, वन बॉक्स तक है वो नॉर्मल कहलाता है. थोड़ा बहुत रीडिंग्स में वेरिएशन होता है तो नॉर्मल कहलाता है, लेकिन वन बॉक्स से अगर ज्यादा है, और क्या, आपको मोर देन टू लीड्स में दिखना चाहिए. इफ द एलिवेशन इज इन मोर देन टू लीड्स एंड इट इज ग्रेटर देन वन बॉक्स, then it confirms or it is consistent with a myocardial infarction. Right, class? Here you can see this, 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 even in this. Okay, तो यहाँ भी वो दिखा रहे हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन है कि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से जो है सेगमेंट ऊपर उठ गया है. तो इट इज, then again you correlate. Now how the doctors will say, अब ये आप कैसे पता लगाओगे कि ये किस रीजन का
जो है किस रीजन में हार्ट अटैक हो रहा है, या हार्ट का कौन सा रीजन है जहां उसको ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है. So how can you say that? आप you remember the correlation of the positioning of the lead and the portion of the heart. So if you remember, मैंने आपको बताया था V2 और V3 जो है, V3 और V4 एंटीरियर वॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, V2 और V1 जो होते हैं वो सेप्टल लीड्स कहलाते हैं, यानी सेप्टा को मॉनिटर करते हैं. V3 V4 एंटीरियर लीड्स कहलाते हैं, और V5 और V6 जो है वो लेटरल लीड्स कहलाते हैं, क्योंकि वो आपका लेटरल व्यू देते हैं. तो अगर आप इस पर्सन को डायग्नोज करोगे तो कैसे डायग्नोज करोगे कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दैट इज हार्ट अटैक इज हैपन टू दिस पर्सन इन विच रीजन, इन एंटीरियर लेटरल रीजन, क्योंकि जो लीड्स जो है एंटीरियर पोर्शन और लेटरल पोर्शन को कवर कर रहे थे, उन सारे लीड्स में हमको एलिवेशन नजर आता है. इसीलिए हम सारे लीड्स दैट इज 12 लीड्स को देखते हैं. So here you can see the anterior view of the heart, remember, is best viewed using a lead V1 to V4. V1 से लेके V4 तक आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, जहां पर आपको लीड्स की प्लेसमेंट दिखाई गई है V1 से V6 तक. तो इफ यू लुक इनटू दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये सारे लीड्स के पोजीशन है. सो अगर एंटीरियर वॉल कहाँ है हार्ट का, यहाँ पर, तो हम ये अगर 4 लीड्स में चेंजेस हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एंटीरियर में हो रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ठीक है, दिस इज द एंटीरियर ऑफ अवर हार्ट. तो एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे पता लगाते हैं? इफ यू सी चेंजेस इन लीड V1 to V4 that are consistent with the myocardial infarction. So you can conclude that it is an anterior wall myocardial infarction. Now put it all together. What do you think that this person is having a myocardial infarction? If so, where? तो आप किसी किसी लीड में, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कि कौन कौन से लीड्स में आपको दिख रहा है? आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बेसिकली? हाँ, कोशिश करो. This is a 12 lead ECG. I hope now you are able to at least read a 12 lead ECG. आप देख सकते हो 12 lead ECG को और समझ सकते हो, है ना? Are you able to understand now 12 lead ECG? Yes, class. Am I audible? Yes, ma'am. You're Okay. audible. मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ. तो अभी समझ सकते हो, यस और नो? अभी समझ आया कि हम ईसीजी में क्या क्या होता है स्ट्रिप में? अभी आप रीड कर सकते हैं ईसीजी को? Yes, ma'am. आप मुझे इस ईसीजी में बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको जो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिखाई दे रहा है, किन लीड्स में? V1 leads and V2 leads. हाँ, V1 और V2 में आपको दिख रहा है. हाँ, वो चेंज जो एक पर्टिकुलर मैंने बताया टूम शेप स्ट्रक्चर बन जाता है बिकॉज ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन. एसटी सेगमेंट जो है अपने आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से, सो वेयर यू कैन सी हियर दिस इज एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, सो एसटी सेगमेंट should lie where it should in line with this isoelectric line, but here you can see it is not. तो V1 में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, V2 में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, है ना? V1 और एटलीस्ट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ना V1 एंड V2 जहां पर क्लियर कट है. जहां पर क्लियर कट नहीं है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ना? तो this person is having an acute anterior wall myocardial infarction. At least V1 और V2 में देख पा रहे हो आप आपको कहीं और अगर समझ नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज नॉट नॉर्मल. दिस इज नॉट एन नॉर्मल ईसीजी. नाउ दैट यू नो वेयर टू लुक फॉर एन इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपको पता चल गया कि V1 V2 V3 V4 देखना है. नाउ एटलीस्ट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई V1 और V2 में आपको दिख रहा था. ओके,
इंफीरियर अगर इसी तरह लेटरल वॉल और इंफीरियर वॉल अगर इन्वॉल्व हो तो हम कौन से लीड्स देखेंगे? सो यू रिमेंबर द व्यूज ऑफ द हार्ट। वी हैव डिस्कस्ड कि कुछ लीड्स जो हैं वो हमें गुड व्यू ऑफ एंटीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट देती हैं, दैट इज V1 to V4 वी हैव लर्न। इंफीरियर व्यू, कुछ लीड्स हमें इंफीरियर व्यू देती हैं। इफ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था लीड 2, लीड 3 एंड व्हाट इज द थर्ड लीड? AVF, जो फुट की तरफ लगी होती है AVF की। तो 2 और 3 और फुट वाली तीन जो है आपको इंफीरियर पोर्शन दे देती है ना। एंड लेटरल पोर्शन की तरफ कौन सा लगा होता है? V1 लगी हुई होती है और V5 V6 लगी हुई होती है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो लेटरल पोर्शन ऑफ दीज लीड्स कवर द लेटरल पोर्शन ऑफ हार्ट। तो कहाँ हमें हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो है जिस लीड में भी दिखाई देगा वो उस लीड को, वो लीड जिस भी करस्पॉन्डिंग हार्ट के पोर्शन को कवर करती है वो बता देगी आपको कि कौन से रीजन में हार्ट अटैक हुआ था। ठीक है। तो अदर एमआई लोकेशंस आपको हमने एंटीरियर के बारे में डिस्कस किया। दूसरे एमआई लोकेशंस क्या हो सकते हैं? दूसरे एमआई लोकेशंस आपके इंफीरियर और लेटरल हो सकते हैं। So remember that the 12 lead of ECG look at the different portions of the heart. The limb and the augmented lead see the electrical activity which is moving inferiorly. तो inferiorly में हम अगर देखेंगे, so if you remember 2 और 3, lead 2 और lead 3 किस एंगल और किस डायरेक्शन में देखते हैं? So you remember that and that they will give you the inferior look. Augmented, अगर हम ऑगमेंटेड लीड्स की बात करें तो ऑगमेंटेड में से तीनों लीड्स में से कौन सी लीड जो है हमें इंफीरियर व्यू के बारे में बताती है? AVF। तो 2, 3 AVF ये हमें बता देती है कि इंफीरियरली है ना। तो 1, so 2, 3 and AVF, right? And if we talk about to the left, lead 1, you remember lead 1, this is my lead 1, उसकी direction from my right to my left, and AVL to the AVR to the right. Whereas the precaudal leads आपको बता दिया मैंने posterior to anterior direction देखते हैं. So now using these three diagrams आप ये आपको पता है already. Anterior portion का आपको पता है V1 to V4 है. एंड लेटरल पोर्शन का क्या होगा? लेटरल पोर्शन का मैंने आपको बताया कि लीड 1 AVL, V5 एंड V6। चेस्ट लीड्स में से V5 और V6 आप देखोगे। इधर देखो लेटरल में AVL, ऑगमेंटेड में कौन सा लीड देखोगे? AVL देखोगे, प्रिकॉर्डल में V5 V6 देखोगे, और लिम्ब लीड्स में से कौन सी लीड देखनी है? लीड 1 देखनी है। सो दैट विल गिव यू अ लेटरल व्यू। इस तरह से डॉक्टर्स देखते हैं कि अगर इन तीन लीड्स में चेंजेस हैं, इन 3 या 4 लीड्स में, दैट इज 1 AVL, V5 to V6, क्या चेंजेस हैं? ST सेगमेंट एलिवेशन है। दे अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज हैविंग अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। किधर की तरफ? लेटरल साइड की तरफ। दिस इज अ लेटरल EMI। लुक एट द लेटरल EMI। इंटीरियर MI के बारे में बता दिया मैंने। इंटीरियर MI इज V1 to V4, एंटीरियर वॉल। लेटरल वॉल 1 AVL, V5 to V6। अब मिक्स्ड भी हो सकता है, एंटीरियर लेटरल भी हो सकता है। अगर एंटीरियर लेटरल MI होगा तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? है बेटा, अगर एंटीरियर लेटरल है, मैंने पूछा आपसे कि अगर एंटीरियर लेटरल MI है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? लीड में ECG में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करोगे? कौन से लीड्स देखोगे? बताओ। मैम लीड 2 और 3। लीड 2 और 3 देखोगे। बाकी और बताओ। अब मैं पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग कि अगर मैंने आपको बोला एंटीरियर लेटरल MI है, तो एंटीरियर लेटरल MI है, व्हाट डू यू थिंक इन विच लीड्स यू वुड सजेस्ट द चेंज इन STI सेगमेंट एलिवेशन? एक आंसर मिला है मुझे लीड 2 और 3 में, V2 और V3 सॉरी। उसके अलावा मैम हम्म
मैम एक्चुअली जो एंटीरियर व्यू देती है हार्ट का वो लीड 3 एंड लीड 4 होता है, एंड मैम लेटरल व्यू देती है लीड 5 एंड लीड 6. सो मैम आई थिंक चेंज मे बी इन लीड 4 एंड लीड 6. और कोई? एंटीरियर लेटरल अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो कौन से लीड्स में चेंज देखोगे आप? इस क्लास तो बताया मैंने, आंसर 2 आंसर्स मिले हैं मुझे पूरी क्लास में से, इसका मतलब आधी तो क्लास है नहीं और आधी जो है वो पता नहीं क्या कर रही है, आर नॉट हियर। मैंने अभी आपको बताया एंटीरियर वाला, तो V1 टू V4 एंटीरियर, तो आप कहोगे मैम V1 और V1 V2 V3 V4 देखेंगे में से अगर किसी भी 2 लीड्स या 3 लीड्स में हो सकता है चारों लीड्स में चेंज हो, तो हम ये 4 देखेंगे। और लेटरल भी आपने बोला है तो हम लीड 1 AVL V5 और V6 भी देखेंगे। तो इसका इनमें से ये जो है क्या कहते हैं, 4 वो लीड्स और 4 ये लीड्स, ये 8 लीड्स हमको बताएंगी इनमें चेंजेस होना चाहिए अगर पर्सन इज अंडरगोइंग एन एंटीरियोलेटरल एमआई। एंटीरियोलेटरल एमआई है तो इन 8 लीड्स में चेंज होना चाहिए। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है आठों लीड्स में चेंज आ रहा है, 8 लीड में से कोई 3 लीड, कोई 4 लीड्स में आपको, कोई 5 लीड्स आपको ऐसा सेगमेंट एलिवेटेड दिख सकता है। नाउ यू शुड नो कि भाई मुझे अगर एंटीरियर लेटरल एमआई देखना है तो मुझे कौन सी लीड्स देखनी होगी। तो एंटीरियर लेटरल देखने के लिए आपको कौन सी लीड्स देखनी होगी, अभी बताया मैंने, एंटीरियर वाली V1 टू V4 वो भी देखनी होगी, V5 और V6 भी देखनी होगी, लीड 1 और AVL भी देखनी होगी। तो आपको ये 8 लीड्स जो है बताएंगी कि पर्सन को एंटीरियर लेटरल एमआई है। 8 में चेंज हो सकता है, इन 8 में से 4 में भी चेंज हो सकता है, 5 में भी चेंज हो सकता है, 6 में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चलो नाउ इंफीरियर एमआई। इंफीरियर वॉल में अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो उससे कैसे एसोसिएट करना है, उससे अगेन लीड्स के साथ एसोसिएट। नाउ हाउ अबाउट द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट, लीड्स विल लुक better into that, lead 2, lead 3 and AVF. Look at the position of lead 2 and lead 3. Lead 2 and lead 3, they are looking into that direction, or they are monitoring the electric current flowing in this direction, that is towards the inferior wall of our heart. What? AVF. AVF हमको। तो अगर inferior, अगर मैं आपसे पूछूं person is having an inferior MI, then which lead you would suppose to look at? What would be your answer? Lead 2, lead 3, AVF. Segment elevation, ma'am, ST segment elevation in lead 2, lead 3 and AVF. Okay, class? Ma'am, So putting it all together, now where do you think this person is having a myocardial infarction? I will again ask you, आप किस लीड में आप हिसाब से इसमें चेंज दिखाई दे रहा है? कैन यू आइडेंटिफाई? Although again I'll say it is difficult, but you can try at least. We are not a medical student, हमको रोज बेसिस पर करना नहीं है इसको, तो it is difficult, but at least you can give it a try. Can you see ST segment elevation? ma'am, V2, V3, V4. V2 में ये वाला बता रहे हो मुझे? V2 V3? मैम V2 V3 और V4. V3 और V4, हाँ, उसके अलावा और कोई आंसर देना चाहेगा मुझे? ये आंसर इसका, हाँ देखो ये जो लाइन है, दिस इज योर ST सेगमेंट, जहां मेरा कर्सर देख रहे हो ना क्लास, वहां पर। तो ये वाली लाइन कहाँ होनी चाहिए थी बेसिकली? ऊपर वाले में देखो, ये सेम पोर्शन देखो, ये यहाँ पर है,
इसका मतलब 1 में नहीं है। ये वाला पोर्शन क्या एलिवेट हो गया। तो लीड 2, और ये कौन सी लीड है, लीड 3। 3 में भी दिख रहा है। एवीआर में देखूं, नहीं एवीआर में नहीं दिख रहा है। एवीएल में देखो, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन और एसटी सेगमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। एवीएफ में दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एवीएफ में। तो अभी ये कौन सा हो गया, यहाँ लिखा हुआ है देखो, दिस इज एन इंफीरियर एमआई। क्यों होगा, 2 3 एवीएफ में आपको दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिख रहा है ना। V2 में देखो, कहाँ दिख रहा है, ये है सेगमेंट आपका V2 में, देखो बेटा ये है एसटी सेगमेंट। अब एसटी सेगमेंट ये देखो, ये तो यहाँ ये है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आपकी, उसी लाइन में आ रहा है ना। पीआर इंटरवल है, ठीक है, तो ये एसटी सेगमेंट है। तो पीआर इंटरवल की लाइन में एसटी सेगमेंट आ रहा है, पीआर इंटरवल भी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर होना चाहिए, उसकी लाइन में आ रहा है। V3 में देखो आप, कहाँ है एसटी सेगमेंट, ये रहा एसटी सेगमेंट है ना। तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम ये मुझे उठा हुआ लग रहा है। सो दैट्स व्हाई जे पॉइंट नाउ हियर इट इज कम कि जे पॉइंट से उठा हुआ होना चाहिए। देयर इज द जे पॉइंट जहां पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म होता है और एसटी सेगमेंट शुरू होता है। तो इट शुड बी रेज्ड ना, कहाँ तक, दो एटलीस्ट दो स्मॉल बॉक्सेस में रेज्ड आपको दिखना चाहिए, एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू योर, दिस इज एन एक्यूट इंफीरियर। अगेन यहाँ पे देखो, दिस पर्सन इज हैविंग अ माई इन्वॉल्व बोथ एंटीरियर वॉल। तो एंटीरियर वॉल में क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, V2 और V4 तक, यानी V2 V3 V4। लुक एट दिस, ये तो एकदम क्लियर कट है। कहाँ होना चाहिए था ये वाला पॉइंट, दैट इज जे पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए था, यहाँ, और है कहाँ पर, यहाँ। V3 में भी देखो कहाँ, यहाँ होना चाहिए था। तो ये 3 रीडिंग V3 की हैं, ये V2 की है 3 रीडिंग, और V4 की भी है। V4 की क्या, ये जो पॉइंट है जहां मेरा कर्सर है, वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, यहाँ है, कहाँ, ऊपर उठ के यहाँ पे, है ना। V5 और V6 में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है आपके लिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि रीडिंग्स इतनी डिस्टिंग्विश नहीं होती हैं, वेव्स इतनी डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, छोटे छोटे रीडिंग्स आते हैं, रिकॉर्डिंग्स आते हैं। तो V5 एंड V6 इज ऑल्सो गोइंग ऑन। स्पेक्ट्रल का भी है, तो 1 एंड AVL में भी है, 1 एंड AVL, है ना। तो इतना माइन्यूट चेंज है, बट हियर यू कैन सी 1 की रीडिंग भी कहीं इस जैसे ग्राफ में छोटी है बहुत। अगेन इफ यू सी कि कहाँ पर है, तो दिस इज द एलिवेशन साइड, दिस इज एन एलिवेटेड, होना कहाँ चाहिए था, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के बराबर में होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द एल में भी, AVL मीन्स, तो यू नो कि एंटीरियर है, V2 V4 में दिख रहा है तो एंटीरियर भी है, और 1 और AVL में दिख रहा है, 1 एंड AVL में यू हैव रेड कि 1 और AVL में होगा, तो वो लेटरल भी है, क्योंकि 1 AVL V5 एंड V6 आपने पढ़ा कि अगर इनमें STS सेगमेंट एलिवेशन होता है, सो दिस इज एन एंटीरियो लेटरल MI, एंटीरियो लेटरल मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, इतना ही हमने पढ़ा, मुझे इतना ही पढ़ाना है आपको। ऑफ कोर्स इट्स एन एंडलेस, ECG अभी खत्म नहीं होता। ECG में आप में और अगर आपको पूरा महीना भी ECG पढ़ा सकती हूँ तो भी इट विल नॉट फिनिश इट अप, इसके डिटेल्स हैं। तो दिस इज अ पिक्चर शोइंग यू द एंशियंट फोटोग्राफ ऑफ विल्हेम इंथोविन, जो कि अपना मॉडर्न, अभी तो आप मॉडर्न मशीन्स देखते हो, दिस इज द इनिशियल प्रोटोटाइप। टाइम ऐसा सेटअप था जब वो अ, इस इस इमेजिंग टेक्निक को डेवलप कर रहे थे, इन्वेंट कर रहे थे। सो हियर यू कैन सी व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे बैठ के, ये उन्होंने क्या कर रखा है चार्ज में, वेव्स मेजर करने के लिए कुछ। हाँ इलेक्ट्रोड्स हैं ये, कली ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, स्लाइड्स हैं बेसिक, है ना। वो क्या काम कर रहे हैं, एज एन इलेक्ट्रोड्स काम कर रहे हैं। So here you can see he is using his limbs. Can you see 3 limbs and yes class, I have talked Yes, ma'am. about Yes, ma'am. limb leads.
लिम लीड्स हम कहाँ लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स हम कहाँ प्लेस करते हैं, लिम्स पर प्लेस करते हैं, 4 लिम्स। तो हियर यू कैन सी कैसे जो है इनिशियल सेटअप कैसे हो रहा है। देखो आप, वो दोनों हाथ जो हैं वो जार्स में डाले हुए हैं, और एक पैर, कौन सा पैर है, लेफ्ट पैर, हाँ, लेफ्ट लेग एंड बोथ ऑफ द आर्म्स in the jars which is attached to this his initial setup। वो जो उनका सेटअप है उसमें उन्होंने अटैच कर रखे हैं थ्रू वायर्स। सो दीज जार्स दे आर एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोड्स। एंड लुक एट his right leg, his right leg is placed on the earth, he is not using his right leg so that उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग जाए। okay, this is an interesting to know from this to this। so these are the today's modern ECG machines। ये पुराने machines हैं और ये ब्रांड न्यू बिल्कुल अब जो यूज में आता है। ये पुराने मशीन्स में अगर आप देखोगे तो इस तरह का सेटअप हुआ करता था और इस तरह के इलेक्ट्रोड्स होते थे वैक्यूम वाले। नाउ नो मोर, दीज आर नॉट इन यूज, वी आर मोर एडवांस्ड नाउ, वी आर यूजिंग स्मॉल स्मॉल पैड्स यूज करते हैं। आई शो यू दोस पैड, वैसे तो मैंने आपको दिखाया भी था उस दिन, जो आपने वीडियो में देखा वैसे ही पैड्स होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड वैसे ही होते हैं। तो we have discussed the ECG in very brief। with the help of ECG हम क्या क्या कर सकते हैं ECG से, उसका यूज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। यस क्लास, किसी ने नहीं लिखा है, मैंने जितने लोगों ने सबमिट किया मैंने देखा किसी ने ये उसका यूसेज या सिग्निफिकेंस नहीं लिखा है समरी में, है ना, किसी ने नहीं लिखा है। मैम उसमें लिख रखा है 2 ही पेज का लिखना है, नॉट मोर देन 2। हाँ, नॉट मोर देन 2 पेजेस का, लेकिन आप उसमें तो 2-3 लाइन तो मेंशन कर सकते थे ना कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। Ma'am, I have written the clinical significance, ma'am. हाँ, जब हम पढ़ रहे हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक्स पढ़ रहे हैं तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, बताओ। अभी सब पढ़ तो लिया, बताओ, जो पढ़ लिया वही तो बताना है। Detection of various heart diseases. हाँ, वेरियस हार्ट डिजीजेस, और बस एक ही चीज। ओहो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ रिदम है, रिदम का डिस्टरबेंस है। एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन क्या है हार्ट की, जिसको हम कार्डिक एक्सिस बोल रहे हैं। कार्डिक एक्सिस से हमें क्या पता चल रहा है ना, कार्डिक एक्सिस से एक तो हमें ये पता चल रहा है कि जो ओरिएंटेशन ऑफ करंट हमारे हार्ट में जनरेट हो रहा है उसका क्या ओरिएंटेशन है, वो नॉर्मल है या नहीं है। हमने कार्डिक एक्सिस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात की है कि कार्डिक एक्सिस, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि नॉर्मल कार्डिक एक्सिस कितनी होनी चाहिए, बस उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं बेसिकली उसके बारे में हमने थोड़ा सा नहीं बात किया कार्डिक एक्सिस को। बट आपको पता होना चाहिए कि कार्डिक एक्सिस भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है किसी पर्सन में, राइट की तरफ तो नहीं जा रही, इट शुड ऑलवेज टूवर्ड्स +30 टू +90 के बीच में होनी चाहिए, है ना, राइट में तो नहीं जा रही है, लेफ्ट में होनी चाहिए, लेफ्ट में होती है आपको पता है। और आपको क्या पता चलता है, साइट ऑफ पेस मेकर, आपको चेम्बर्स के बारे में पता चलता है कि हार्ट के चेम्बर्स बड़े तो नहीं हैं। यस, एनीवन वुड लाइक टू से एनीथिंग, और क्या पता चलता है, ब्लॉकेज तो नहीं है, ब्लॉकेज के बारे में पढ़ा है हमने, हार्ट में ब्लॉक तो नहीं है। ब्लॉक इन व्हाट, इन द कंडक्शन सिस्टम, ब्लॉकेज इन व्हाट, नॉट in the circulatory system but in the conduction system, and of course blockage of the circulatory system as well, है ना। हार्ट अटैक से हमें क्या पता चल रहा है, जब हम हार्ट अटैक नोटिस कर रहे हैं तो हम ये भी बता पा रहे हैं कि कौन सी लोकेशन में जो है वो ब्लॉकेज है, इस वजह से वहां का हार्ट जो है वहां का वहां पर particularly the MI is happening at that location। so you can also tell the extent and the location progress of the क्या कहते हैं इस्कीमिक और आपका कार्डियक अरेस्ट जो हो रहा है उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, वो चेंजेस देख के आप पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की अगर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑल्टर्ड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, वो भी ईसीजी को डिस्टर्ब करेगी क्योंकि वो भी आपके हार्ट रिदम्स को इफेक्ट करेगी। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन ड्रग्स, उनका भी आप जो है
that can also be find out with the help of the ECG. Right? So these are few uses of or clinical significance of electrocardiogram. राइट? प्रिकॉशंस क्या-क्या यूज़ करनी चाहिए हमें? आपने देखा था जब मैंने आपको दिखाया था, क्या कहते हैं कैसे करते हैं, तो सब्जेक्ट्स को कैसे लाई कराया था उस डॉक्टर ने? इट शुड लाई कंफर्टेबली सुपाइन, है ना? सीधा बेड पे उस पोज़ीशन को क्या कहते हैं? सुपाइन पोज़ीशन कहते हैं, ठीक है? एंड आल्सो द सब्जेक्ट शुड नॉट सपोज्ड टू वियर एनी मेटालिक वायर्स, क्योंकि वो इंटरफेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि बहुत लो वोल्टेज के होते हैं। तभी तो हम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ये जो है आपका, ये बेसिकली ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये करता भी क्या है? ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ भी करता है वोल्टेज को, सो दैट कैन बी मोर विजिबल। खाली ज़िगज़ैग लाइन्स आने से उसकी जगह पर हमें एक विजिबल पैटर्न दिखे, ओके? एंड लूज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए पेशेंट केबल का। उसकी वजह से क्या होगा, अगर कॉन्टैक्ट लूज होगा तो इतना क्लियर कट ग्राफ नहीं आएगा, नॉइज बहुत आएगी। नॉइज का मतलब क्या होता है कि जो आपका ग्राफ है वो जिगजैग जिगजैग आएगा, और ये जो वेव्स आपको इन द फॉर्म ऑफ अ क्लियर वेव, फॉर एग्जांपल पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव आपको जो एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर आपको जिगजैग जिगजैग लाइंस अगर दिखते हैं तो इसका मतलब वो जो है बैकग्राउंड आपको नॉइज आ रहा है, दैट इज नोन एज अ बैकग्राउंड नॉइज। और वो हो सकता है कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लूजली लगाए गए हों, इस वजह से हो सकता है। अगर मशीन और पेशेंट प्रॉपरली ग्राउंडेड नहीं है तो पावर लाइन जो है वो इंटरफेयर कर सकती है ईसीजी वेव फॉर्म्स के साथ, तो ग्राउंडेड होना चाहिए। सारे जो लीड्स हैं वो बॉडी सरफेस पर ठीक से लगे होने चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस है। और राइट लेग जो होना चाहिए पर्सन का, सब्जेक्ट का, दैट शुड बी एलिमिनेटेड एंड इट शुड यूज्ड फॉर अ ग्राउंडिंग। और जितनी भी लीड्स हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में लगी होनी चाहिए, कलर कोडिंग है उनके लिए, ठीक है? So these are few precautions which has to be taken while taking the ECG. Okay, class. So this is all about ECG. थोड़ा सा हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था ना। आई होप थोड़ा सा आपने कुछ लर्न किया हो अदर देन व्हाट योर प्रीवियस नॉलेज रिगार्डिंग दी ईसीजी, जो आपने सिर्फ अभी तक ग्राफ पढ़ा था। आई होप आपने थोड़ा आज कुछ एक्स्ट्रा लर्न किया हो इस क्लास में, बिकॉज हम इसको कर तो सकते नहीं है। ऑल्दो आई कैन शो यू, अगर कॉलेजेस को लेंगे तो फिर हम उस टाइम हमारे कॉलेज में जो है क्या कहते हैं, जब मेडिकल कैंप्स लगते हैं उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर दिखाती हूँ